اے میرے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تیرے بڑے بڑے وعدے ہیں، اے اللہ تیری بہت رحمتیں ہیں اس مہینے میں، اے میرے اللہ اس مہینے کو تو بہت پسند کرتا ہے، اے میرے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، میرے اللہ مجھے اولاد دے دے، میرے اللہ مجھے اولاد نصیب کر، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، لوگ مجھے پریشان کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو آج کا جو وظیفہ ہے بہت آسان ہے اور بہت پاورفل ہے، بہت آسان اور بہت پاورفل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہے، جو بے اولاد ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ رمضان المبارک کا ہے، کہ یہ وظیفے کو ہمیں رمضان المبارک میں کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فائدہ دے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، بہت بابرکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ وہ بابرکت والا مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے، یہ وہ مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالی فرشتوں کو اپنے بندوں کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اے فرشتے میرے بندے کے دعاؤں پر آمین بولو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جتنی بھی مخلوق ہے اس دنیا میں، جتنی بھی مخلوق، وہ سب روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے روزے دار کے لیے ساری مخلوق۔ یہ وہ مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کا فائدہ اٹھانا ہے، اس رمضان المبارک کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ جگہ جگہ جا جا کے بھٹک رہے ہیں، لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، لوگ آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اولاد کے سلسلے میں ان کا گھر ٹوٹ گیا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ گیا۔ تو آج کا جو عمل ہے بہت آسان عمل ہے اور چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، اور کوئی ایسا بھی عمل نہیں ہے کہ جس کی تعداد بہت زیادہ ہو، کہ 40 دن کرنا ہو یا 21 دن کرنا ہو یا 50 دن کرنا ہو، کچھ دنوں کا عمل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا عمل ہے کہ اس رمضان میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے کہ میرے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اس مہینے میں اللہ کی خوب رحمتیں اترتی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، اور اسی مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کی جسمانی پرابلم ہو، بچے دانی میں کوئی کمی ہو، مرد میں کوئی کمی ہو، کوئی بھی کمی ہو جس کی وجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہو، اور آپ کو اولاد کی خوشی ملتی ہو لیکن حمل گر جاتا ہو، مسکیریج ہو جاتا ہو، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو۔ میرے پاس ایسے کئی فون آتے ہیں، لوگ دو بات نہیں کرتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ستائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ انہیں ستاتے ہیں، لوگ انہیں تانا دیتے ہیں، خود گھر والے تانا دیتے ہیں کہ تو بانجھ ہے، تجھے اولاد نہیں ہے، تو نامرد ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ لوگ انہیں تانا دیتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کب ہمیں اللہ تعالی ہمیں اولاد دے گا، کیا ہماری قسمت میں اولاد ہے بھی کہ نہیں ہے۔
وہ परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये अमल है और बहुत आसान अमल है। आप इसको करें तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। और ये बात याद रखें कि इस रमजान में आपको अल्लाह से लेना है, अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह तू मुझे नहीं देगा तो कौन देगा। अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को मनाना है, क्योंकि जब हम रोजे से रहते हैं तो अल्लाह हमारे करीब होता है। रोजा ही एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए हमारे 12 महीने होते हैं, साल के 11 महीने अरबियों ने रखा, अरबों ने रखा उसका नाम 11 महीनों का, लेकिन एक महीना ऐसा है कि जिसका नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। मैं इतनी बातें आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोगों का यकीन बने, आप लोगों को खुशी मिले, और यकीन के साथ आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो कि ए मेरे अल्लाह हमें भी औलाद दे दे, ए मेरे अल्लाह हमें भी औलाद दे दे। आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। तो आप अमल सुन लें, जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ बहुत आसान अमल है, लेकिन अमल बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जितने लोग इस चैनल पर नए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करें, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसको भी क्लिक करें। इससे होगा ये कि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा और आप वीडियो देखेंगे और उसका फायदा उठा सकेंगे। तो अमल ये है, बड़े गौर से सुनना, कि अमल ये है कि आपको सूरह कौसर 313 मर्तबा पढ़ना है। सूरह कौसर 313 मर्तबा पढ़ना है। 24 घंटे में कोई भी एक ऐसा वक्त निकाले कि आप सूरह कौसर 313 मर्तबा पढ़ें। लेकिन ये अमल करने से पहले आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़नी है। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़नी है। फिर नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद वही मुसल्ले पे बैठकर, वही जगह पर बैठकर जहां आपने नमाज पढ़ी है, आपको 313 मर्तबा सूरह कौसर आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको 11 मर्तबा या फिर 7 मर्तबा आपको दरूद इब्राहिम पढ़नी है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अगर आपको दरूद इब्राहिम याद नहीं है तो आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दरूद इब्राहिम ही पढ़ें, क्योंकि इसके दर्जे बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद है इसके दर्जे दरूद इब्राहिम के। तो दरूद इब्राहिम आप 7 मर्तबा पढ़ें या तो फिर 11 मर्तबा पढ़ें सूरह इखलास के बाद। उसके बाद अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और ये याद रहे कि 24 घंटे में आप ये अमल कोई भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि रमजान का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला बहुत करीब होता है रोजेदारों के। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जब आप रोजे से रहते हैं तो उस वक्त ये अमल करें, तो उसमें एक अलग ही तासीर पैदा होगी। अमल तो आप कोई भी वक्त कर सकते हैं, कोई भी वक्त ये अमल आप कर सकते हैं, लेकिन आप रोजे की हालत में करेंगे तो उसका मजा ही अलग होगा, उसकी तासीर ही अलग होगी, उसकी ताकत ही अलग होगी। रोजे की हालत में आप ये अमल करें। ये अमल करने के बाद आप अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, खूब गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने, ए मेरे अल्लाह ये रमज़ान का महीना है, इस महीने में तेरे बड़े बड़े वादे हैं, ए अल्लाह तेरी बहुत रहमतें हैं इस महीने में, ए मेरे अल्लाह इस महीने को तू बहुत पसंद करता है। ए मेरे अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर ले, मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मेरे अल्लाह मुझे औलाद नसीब कर, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। ए अल्लाह लोग मुझे ताना देते हैं,
लोग मुझे परेशान करते हैं। ए मेरे अल्लाह, मैं कहाँ नहीं गया, मैं डॉक्टरों के पास गया, मैं आमिनों के पास गया, मैं कहाँ नहीं गया। ए मेरे अल्लाह, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। ए मेरे अल्लाह, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं सिवाय तेरे। ए अल्लाह, देने वाली जात तेरी है। ए मेरे अल्लाह, तू मुझे औलाद दे दे। ए अल्लाह, मेरे मुकद्दर में औलाद लिख दे। ए मेरे अल्लाह, मेरे मुकद्दर में नेक औलाद दे दे। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह से मांगे। देखिए आपको कैसे औलाद होती, आपको औलाद होगी। यह अमल बहुत मुख्तसर है। आप अल्लाह के सामने एक बार गिड़गिड़ाए तो सही, अल्लाह से मांगे तो सही। देखिए आपको औलाद कैसे नहीं होती है। ये रमजान का जो महीना है, इस महीने का आप फायदा उठाएं। अब एक सवाल ये आता है कि ये अमल हमें करना कितने दिन है। तो ये अमल 21 दिन, फिर उसके बाद 11 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जब भी आपको वक्त मिले। या तो आप 21 दिन का अगर आपको वक्त मिलता है इस रमजान में तो आप 21 दिन करें। अगर आपको 11 दिन का वक्त मिलता है तो आप 11 दिन करें। अगर आपको 3 दिन का वक्त मिलता है तो आप 3 दिन करें। अगर आपको 1 दिन का वक्त मिलता है तो आप 1 दिन करें। लेकिन इस रमजान में इस अमल को करें जरूर, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। आपको फायदा होगा बशर्ते कि आपका यकीन होना चाहिए और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए, और कुछ नहीं। बहुत आसान अमल है और इतनी बातें मैं इसीलिए बताता हूं ताकि आपका यकीन बने, आपका यकीन बने, आप मोटिवेट हो जाओ कि नहीं, कोई है हमें देने वाला। क्योंकि जिसे औलाद नहीं है उसे पता है, किसी को 25 साल से नहीं है, किसी को 20 साल से नहीं है, किसी को 30 साल से नहीं है, किसी को 15 साल से नहीं है, किसी को 10 साल से नहीं है, किसी को 5 साल से नहीं। उनकी तकलीफ उन्हें पता है। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिन्हें औलाद नहीं है उन्हें पता है कि औलाद नहीं होने की तकलीफ क्या होती है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, औलाद देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी है। ये रमजान का महीना बहुत कीमती है। हर मिनट, हर सेकेंड, हर लम्हा बहुत कीमती है। ये रहमतों का महीना है। इस महीने में हमें अल्लाह से मांगना ही है। हमें औलाद चाहिए तो चाहिए। ये एक जिद अपने अंदर बना ले कि मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे दे। एक छोटा बच्चा जैसे जिद करता है वैसे अल्लाह से जिद करे, अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने। एक फकीर होता है, कंजर से कंजर आदमी होता है, बहुत कंजर होता है, बखील होता है, जिसके जेब से पैसे नहीं निकलते। लेकिन कोई ऐसा फकीर उससे टकरा जाए, कोई ऐसा भिखारी उससे टकरा जाए कि मुझे पैसा दे तो दे, गिड़गिड़ाए उसके सामने, तो बड़े से बड़ा फकीर, बड़े से बड़ा बखील क्यों ना हो, कंजूस क्यों ना हो, कंजर क्यों ना हो, वो जल्दी से पैसे निकाल के उसको देगा और कहेगा तू निकल यहाँ से, पीछा छोड़ मेरा। बस इसी तरीके से अल्लाह के पीछे हमें लगना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है कि अल्लाह मैं बैठा हूं तो मुझे दे, मेरे अल्लाह मैं तेरे सामने हूं, मुझे दे, मुझे औलाद चाहिए। अल्लाह के सामने एक जिद ठान लो, क्योंकि मुकद्दर बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और ये जो हाथ है, ये हाथ नहीं, ये बहुत बड़ी ताकत है। दुआ इंसान की तकदीर, मुकद्दर सब बदल देता है। दुआ एक ऐसी चीज है, अगर आपके मुकद्दर में औलाद नहीं है लेकिन आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी मुकद्दर बदल जाएगी, आपकी दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। आप मांगे, गिड़गिड़ाए, फकीर की तरह, भिखारी की तरह आप अल्लाह से मांगे। ये अमल करने से पहले अपने आप को तैयार कर ले कि हमें अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कैसे है। क्योंकि अमल करना आसान है, दुआ मांगना बहुत मुश्किल है, और दुआ ही बहुत असल है। हर अमल का असल दुआ है। अमल किया, वजीफा किया, दुआ नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। तो ये बात याद रहे। दूसरी चीज कि ये जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, ये हमारे टीम का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है। और ये नंबर तावीज़ात के लिए है।
हमने 5 महीने का कोर्स बनाया है जिन्हें औलाद नहीं होती है, कि जैसे कि किसी का मिसकैरेज हो जाता है, हमल गिर जाता है, हमल तो ठहरता है लेकिन कुछ दिनों के बाद हमल गिर जाता है, उसको किसी ने जादू बताया है, किसी ने बंदिश बताया है, किसी ने कुछ भी बताया है, तो ये 5 महीने का कोर्स है जो हम तावीज़ देते हैं। तो ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप कॉल करके तावीज़ात मंगा सकते हैं। उसमें बिस्मिल्लाह की तावीज़ होती है जो पीना है, और एक बंदिश की तावीज़ होती है जो पहनना है। तो ये जो 2 तावीज़ है, इसके इस्तेमाल करने से जो हमल गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या फिर बच्चा नहीं ठहरता, या फिर कोई भी कमी है, तो इंशाअल्लाह इस तावीज़ात की बरकत से इंशाअल्लाह वो कमी ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ने चाहा तो आपको जल्द से जल्द फ़ायदा होगा इस तावीज़ के भी बरकत से। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो तावीज़ भी मंगा ले, लेकिन एक बात ख्याल रहे दिल और दिमाग में, ये तावीज़ से भी औलाद नहीं होती जब तक अल्लाह ना चाहे। ये बात आप याद रखें। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, गारंटी मांगते हैं, तो भाई कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे उसे दे। और ये भी याद रखें कि आप तावीज़ात तो मंगा लेते हैं, लेकिन तावीज़ात के साथ आप अमल भी करें, क्योंकि अमल भी ज़रूरी है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप दुआ की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये वीडियो उन बे औलाद के हाथ लग जाए और वो अमल करे तो उनकी दुआ आपको लगेगी, और उनके सदके दुफेल अल्लाह ताला हमें भी औलाद देगा और हमारे बड़े बड़े मकसद को अल्लाह ताला पूरे करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने बे औलाद लोग हैं इस वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर भेज दें, और लोगों के लिए दुआ करें कमेंट्स बॉक्स में कि अल्लाह ताला हर किसी को नेक औलाद नसीब करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।